الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ محترم و معزز سامعین و حاضرین و ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ اس پاک بزم اور مجلس کا حصہ ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے، اور یہ درس قرآن اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا ایک اثر اور نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس سے جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے، آمین۔ آج کا درس انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 41 سے 41 سے ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول آپ ان لوگوں کے بارے میں غمگین نہ ہو جو اپنے کفر میں سبقت لے گئے۔ من الذین قالوا، جن میں سے بعض ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ آمنا بافواہہم، جنہوں نے کہا اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں لاتے، ومن الذین ہادوا، اور انہی میں سے یہود بھی ہے، سماعون للکذب، جو صرف جھوٹی اور من گڑت باتوں کو سنتے ہیں، سماعون لقوم، ایسی قوم کے لیے سنتے ہیں، آخرین لم یاتو کا، جن سے وہ کبھی ملے نہیں ہیں، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور اللہ کے کلام کو، کلام الہی کو اس کی اصل ٹھکانے اور جگہ سے ہٹا کر تحریف کرتے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر یہ فیصلہ تمہارے مجاز کا نکلا، فخذوہ، تو تم اس کو مان لینا، تسلیم کر لینا، ولم تؤتوہ، اور اگر اپنے مجاز کے خلاف ہو، فاحذروہ، تو چھوڑ دینا، ومن یرد اللہ فتنتہ، اور اللہ رب العالمین جس کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، اے محمد آپ پر کچھ بھی چیز کا اختیار نہیں، آپ مالک نہیں۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی۔ وہ لوگ بھی جو زندہ تھے اس وقت، اور قیامت کی صبح تک جو انسان اس دنیا کے اندر آئیں گے اور ایمان کی دولت سے والا مال ہوں گے، وہ بھی، اور جو غیر مسلم وہ بھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور تخلیق اس بنیاد پہ تھا کہ آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں یا جتنی بھی آپ کے خلاف پلاننگ ہوئی، آپ کے خلاف آپ کے گیٹس میں، آپ نے کسی بھی سازش کا بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں لیا کہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، مجھے طرح طرح کے لقب سے ملقب کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں تک دی گئی، ان کے اوپر کوڑے تک پھینک دیے گئے، کئی طرح کے الزامات بھی لگائے گئے۔ لیکن یہ خوبصورتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، یہ چیز تھی۔ جبکہ آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے تو آپ کی ایک خواہش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ سارا کا سارا عرب مسلمان ہو جائے، آپ کی دین کی دعوت پر سب لوگ لبیک بولتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ غمگین نہ ہو۔ یحزن کا حزن، یحزن مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا، اردو میں کہتے ہیں حزن و ملال، حزن مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا۔ اے رسول آپ غمگین مت ہوئیے، کن لوگوں کے بارے میں؟ یسارعون فی الکفر، جو اپنے کفر میں سبقت لے گئے، سبقت مطلب فوراً کفر میں چلے گئے، ذرا بھی نہیں سوچا، ذرا بھی نہیں سمجھے، ذرا سا بھی اسٹرگل نہیں کیا، ذرا سا بھی کوشش نہیں کی، اور اللہ کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ کفر کی حالت میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے دکھ تھا اس بات کو لے کر کہ ان کو میری دعوت پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن یہ کفر میں چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک مزاج بنا لیا تھا کہ سب لوگ مسلمان ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے آیت نازل کیا کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ غمگین مت ہوئیے۔ آپ غمگین کیوں ہو رہے ہیں؟ آگے اللہ نے کہا من الذین قالوا آمنا بافواہہم، بعض ایسے بھی لوگ تھے اس میں جو کفر میں چلے گئے، جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے، جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں لائے ہیں۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ ایمان کی جو 3 اقسام ہیں، اس میں ایک ہے تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، اقرار باللسان۔ ان 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ پہلے کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، لسان کہتے ہیں نا، مادری زبان جو کہتے ہیں کہ آپ زبان سے کہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو زبان سے ایک اقرار کرنا ہے۔ اس کے بعد تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا ہے، صرف زبان سے کہے اور دل میں ہم کفر کو چھپا کے رکھے تو ایمان ہمارا صحیح ہے۔ اللہ نے کہا آمنا بافواہہم، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، کس سے؟ اپنے منہ سے۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، حالانکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں لائے ہوئے۔ تو اقرار باللسان تو ہے یہاں پر کہ زبان سے کہہ رہے کہ آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن دل میں جو تصدیق بالجنان ہے، دل سے تصدیق کرنا کہ ہاں ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ جب ایک آدمی زبان سے اقرار کر لیتا ہے، دل سے تصدیق کر لیتا ہے، تو ایک آتا ہے تیسرا عمل بالارکان، جو اپنے رکن ہے، اعضاء جوارح ہے، اس سے عمل کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، زبان سے کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و توصیف بیان کرنا، ذکر و اذکار کرنا، آنکھوں کی روشنی سے قرآن کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، عمل بالارکان۔ 3 چیزوں کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ایک بھی چیز اس میں سے مسنگ پائی گئی، ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اللہ نے آگے بیان کیا کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کمپلیٹ ہو رہے ہیں جو صرف منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے، دل سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کمپلیٹ ہو رہے ہیں جو یہودی ہیں، یہود کے بارے میں ہے۔ اب یہودیوں کی کارستانی کو اللہ نے بیان کیا، سماعون للکذب، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، اردو میں ایک لفظ کذب، اسی سے کذاب بھی آتا ہے، بہت بڑا جھوٹا، مبالغہ کا صیغہ ہے کذاب، بہت بڑا جھوٹا۔ اللہ نے کہا سماعون للکذب، یہ جو یہودی ہوتے ہیں یہ جھوٹ بات صرف سنتے ہیں، صرف جھوٹ بات کو سنتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، مان بھی دیتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور دوسرے قوم کی جاسوسی کرتے جس سے بھی تو ملے نہیں ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے، ایک انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ کسی کے عیب کو تلاش کرتا ہے۔ کس سے تلاش کرتا ہے؟ کوئی بولا نہیں ہے کہ جب پتہ لگا کیا، کسی نے اس کو بھیجا نہیں ہے، وہ لوگوں کے عیب کو اس لیے تلاش کرتا ہے۔ کبھی اس ٹائپ کا آدمی مل گیا، اسے کوئی گینج چھوڑا تو اس کو بتا دیں گے، اس آدمی کا کوئی دشمن اگر نکل کے آگے آج نکلتا ہی کرے گا، اب اس کا دوست بن جائے گا، وہ تم ایسا ہی معاملہ ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ کیا اور اس کو جوڑ دیا یہودیوں سے۔ یہ یہودیوں کا کام ہوتا ہے،
झूठी बात पर कान लगाते हैं, बड़ा अहमियत देते हैं, उस पर गौर करते हैं। आप देखिए दुनिया के अंदर झूठ कितना फैल रहा है। अब देखिए ना, पूरी दुनिया में अगर इंटरनेशनल पैमाने पर देखा जाए, बैन अवी पैमाने पर, तो ज्यादातर झूठ ही गर्दिश कर रहा है। बड़ा मुश्किल हो गया है इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी झूठ और सच को अलग करना, बड़ा मुश्किल हो गया है। आप जैसे अभी देखिए कि एक दौरा हुआ मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका का, आप देखिए उस पर कितनी गलत सलत तहरीर की जा रही है। ये जो गाजा पर हमला कर रहा है इजराइल अमेरिका की मदद से, उसके झोली में जाके मोहम्मद बिन सलमान की, जबकि व्हाइट हाउस का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, ट्रंप ने कहा कि वक्त आ गया कि आप इजराइल से समझौता कर लीजिए। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा सऊदी कोई सफारती ताल्लुकात नहीं रखेगा। टोटो का अंदाज में ये बातें छुपा दी गई, इसको नहीं लिखा गया, इसको नहीं बयान किया गया। तो झूठ पर सारी चीजें चल रही है। यहूदियों के बारे में मैंने कहा ये झूठ को सुनते हैं और झूठ के लिए जासूसी करते हैं। उसने भी डर कर कहा, ये बात ट्रंप को भी पता है कि ऐसी ममालिक ऐसी हुक्मरान है जो मानने वाली नहीं है। उसने कहा कि वक्त आ गया है कि आप इजराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात, एम्बेसी अपना खोलिए। उसने कहा नहीं, जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा सऊदी गवर्नमेंट कोई बात नहीं करेगी, कोई बात नहीं करेगी। बात खत्म हो गया। उसने फोर्स नहीं किया, भी नहीं किया। आप उसको सपोर्ट कीजिए, अपने गाजा के भाई को सपोर्ट करेंगे। तो आलमी पैमाने पर झूठ चलना है, झूठ पर हम लोग जी रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और उसकी निशानदेही अल्लाह ने इस आयत में किया, आयत नंबर 41 के अंदर सूरह माइदा में। और यहूद का नाम मिनल लजीना हादू, जो यहूद है वो झूठ सुनते हैं, और झूठ इसलिए भी सुनते हैं कि जाकर ऐसी कौम को बतला जिसको जो अभी तक उसके पास आई भी नहीं है। मिसाल के तौर पर हमें नहीं पता कि आगे चलकर आपका झगड़ा उनसे हो जाएगा, लेकिन हम अभी तो इनकी जासूसी कर रहे हैं। बाद में पता चला कि इनका झगड़ा उनसे तुम तक पहुंच गया, अरे आप जिसके बारे में लड़ रहे थे ना, अब सुनिए रिपोर्ट में है। इस तरह के काम यहूद वगैरह करते हैं। और एक काम करते, युहर्रिफून कलिमा मिन बादि मवाज़िही, कलाम इलाही जो उस जमाने में मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की शक्ल में उतरा था, आसमानी किताब, वो अल्लाह का कलाम था, उसको तहरीफ करते हैं। तहरीफ मतलब क्या होता था कि उस जमाने के जो उनके उलमा होते थे यहूद और नसारा के, वो देखते थे कि मान लीजिए कि शराब नोशी से उनको फायदा है, और तौरात में शराब के बारे में आ गया कि शराब हराम है, तो वो उसको वहां से मिटा देते थे, इसको हटाओ, हजफ कर दो। क्यों हटाते थे? ताकि पब्लिक को रिपोर्ट ना जाए, खबर ना जाए कि शराब भी यहूदी में हराम है। अब उसको मिटा दिए, उसके बाद बड़ी आयत को पढ़ लिए। अवाम बड़ी नादान होती है, अवाम को नहीं मालूम रहता है, अवाम उलमा पर क्या है ब्लाइंडली भरोसा करती है। जब आलिम है तो कुछ अच्छा ही बता रहे हैं, तो उसने हटा दिया। उन्होंने कहा युहर्रिफूनल कलिमा मिन बादि मवाज़िही, मौजा कहते हैं उर्दू के अंदर, ठिकाने को कहते हैं, जगह को कहते हैं मौजा, वही है मौजा, मीम वाज़ ऐन। उसका जो असल जगह, ये आयत की जगह सूरह माइदा 6 पारा पेज नंबर 114 में, हमने यहाँ से हटा दिया। कौन जानेगा कि कहाँ से हटा हुआ है? हमें तो कोई हाफिज नहीं है। अगर इसको हटाकर प्रिंटिंग कर दिया जाए, हम वैसी तिलावत कर दें, कोई पकड़ पाएगा? कोई नहीं पकड़ पाएगा। एक कुरान ऐसी छापी जाए जिसके बीच बीच से आयत निकाल दी जाए, पढ़ने ना पढ़ के आगे बढ़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि बीच से कुछ गायब हुआ है। क्यों? हमको जानकार नहीं है। उनके उलमा भी करते थे, युहर्रिफूनल कलिमा मिन बादि मवाज़िही, उसको अपनी ऐसी जगह से हटा देते थे। यक़ूलून, कहते थे, इन उतीतुम हाज़ा, अगर अपने तौरात के मुताबिक, चूंकि आयत हटा चुके हैं, फैसला किया जाए तो तुम उसको मान लेना, फ़ख़ुज़ू, उसको एक्सेप्ट कर लेना। व इल्लम तुतऊ फहज़रू, और इसके बरखिलाफ फैसला किया जाए तो क्या करना? उसको छोड़ देना। असल में इसके शान नुज़ूल में एक वाक़या बयान हुआ है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये एक सहाबी रसूल है। ये कौन थे? ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए हिजरत करके, उस वक्त तक अब्दुल्लाह इब्न सलाम मदीना के अंदर यहूद की जमात में थे, और उनके बहुत बड़े पादरी थे। आज के जमाने में पादरी कहा जाता है, बहुत जानकार आदमी थे, तौरात का अच्छा खासा उनको इल्म था। उसके बाद अल्लाह ने उनको हिदायत दी और मुसलमान हो गए। एक वाकया आया बनी यहूदियों के अंदर कि ज़िना पर क्या सजा है। एक मर्द औरत ने शादीशुदा में ज़िना किया था। अब उनको भी अपने धर्म के हिसाब से डर था कि गुनाह हमने किया है, लेकिन देखिए गुनाह का सजा देखिए ये है, रजम किया जाएगा। तो वो कहे कि इसको पहले मिस करते हैं, बस कर देते, मिटा देते हैं तौरात में से।
اور उसकी जगह पे लिख देते हैं कि जिना करने वाले को कोड़े पड़ेंगे, जबकि शरीयत इस्लामी में क्या है कि जानी अगर कुंवारा है तो कोड़े मारे जाएंगे। जिना करने वाला, मान लीजिए औरत शादीशुदा है, लड़का कुंवारा है, तो औरत को रजम किया जाएगा। शादीशुदा का तरीका है, गुनाह का सजा क्या है, जिना का रजम किया जाएगा। रजम मतलब यहाँ तक जमीन में धंसाकर पत्थर मारे जाएंगे। दोनों कुंवारे, दोनों शादीशुदा है, कॉमन याद रखिए, कुंवारा शख्स को 100 कोड़े मारे जाएंगे और शादीशुदा को रजम किया जाएगा। अब दोनों शादीशुदा थे, लेकिन उनको डर था अपने आसमानी किताब तौरात के हिसाब से कि अल्लाह ऊपर पकड़ेगा। इन लोगों ने कहा चलते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हमारी किताब में तो कोड़े लिखे हुए, रजम लिखा हुआ है, उनके यहाँ देखते हैं, अगर उनके हो सकता है कुछ तब्दीली आ गई हो, कोड़ा हुआ तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, चलो कोड़ा खाकर निकल लेते हैं। और अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं यहाँ भी रजम है तो वहां से निकल लेंगे, है ना। दोनों पहुंची, क्योंकि उनको पता था हमारी किताब में क्या है, उनकी किताब में भी तौरात में भी रजम है। और दोनों कहे इन उती तुम हाजा, अगर हमारे हिसाब से फैसला हुआ फखुजू तो उसको हम लोग मान लेंगे, चलो भाई कोड़ा मान लीजिए। वइल्लम तुताहु फाजरू, अगर हमारे खिलाफ नहीं हुआ या हमारे मुताबिक नहीं हुआ तो हम लोग वहां से निकल लेंगे। ये लोग गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, हम यहूद से ताल्लुक रखते हैं और हम लोगों ने जिना किया है, जरा बताइए तो आपके यहाँ इसका क्या सजा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने से पहले कहा तुम्हारी किताब में क्या है, तुम्हारी किताब में क्या है। तो उन्होंने कहा देखिए हमारी किताब में तो कोड़े लगना है। तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम उस मजलिस में मौजूद थे, जो बहुत बड़े आलिम थे यहूदियों के। उन्होंने कहा कि आप झूठ कह रहे हैं, मेरे पास मौजूद है उसका। और उन्होंने खोल कर दिखलाया कि तौरात में भी ज़िना की सजा क्या है, रजम करना। आज के यहूदी एक्सेप्ट करेंगे? इतना तौरात को बदल दिया गया है, इतना उसमें तहरीफ कर दिया गया है कि मुझे लगता है कि ओरिजिनल किताब नहीं मौजूद होगी दुनिया में। कहाँ से आप दिखाएंगे? उनको चिड़ इसी बात का है कि हम लोगों ने किताब को मिटा दिया, कुरान ने बता दिया। वो तौरात को मिटा मिटा के तहरीफ कर करके अमेंडमेंट कर करके पूरा खत्म कर दिया असल कॉपी। कहां से कुरान उतर गया? अब ये आयत है, अब यही आयत ले लीजिए जो यहूदी को पोल खोल रहा है, वो जानते हैं, उनके पादरी जानते हैं इस बात को, ये कुरान मामूली किताब नहीं है जो हमारी पोल खोल रहा है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने कहा कि नहीं तुम झूठ कह रहे हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरात के अंदर भी जो जिना करने वाला जानी है, शादीशुदा है, उसको भी रजम किया जाएगा। समझ गए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारी किताब कुरान के अंदर भी जानी को अगर शादीशुदा है तो रजम किया जाएगा, रजम किया जाएगा। सोचिए कितना बड़ा जुर्म है। लेकिन ये समझने वाली बात है मेरे भाई के ये आजकल गर्चे जिना आम हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका हुक्म खत्म हो गया है। अगर आसानी से हम जिना करने में कामयाब हो जा रहे हैं, कोई हमको पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन अल्लाह देख रहा है। और यहाँ पर सजा नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे इंतजाम है, पूरी तैयारी है वहां पे कोई सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए बड़े बड़े गुनाहों से हम तौबा करें, इससे पहले कि रूह निकल जाए, जान चली जाए, मर जाए, हम अल्लाह से तौबा कर ले कि अल्लाह अब हमसे ये गुनाह जो हुए तो माफ कर दे, अब हमसे कभी दोबारा गुनाह नहीं, तौबा कर रहे। मतलब ये कभी नहीं समझे बड़ा आसान हो गया है गुनाह करना, चलो करते रहो, उससे क्या है, कौन पकड़ने देखने जा रहा है, कौन बनने जा रहा है, अल्लाह देख रहा है। आगे अल्लाह ने कहा मैं युरिदिल्लाहु फितनतहु, अल्लाह अगर किसी को फितने में, आजमाइश में या उसके गुनाह में मुब्तला करना चाहे, फलन तमलिक लहु मिनल्लाहि शैयन, तो ऐ नबी आप अल्लाह के काम में जर्रा बराबर भी मालिक नहीं। अल्लाह ने कहा कि आपको जर्रा बराबर भी इख्तियार नहीं है। अगर अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा करना चाहे तो आप बुराई नहीं पहुंचा सकते, अल्लाह किसी को बुराई में मुब्तला करना चाहे तो आप उसको अच्छा नहीं कर सकते। ये अल्लाह की मर्जी के ऊपर है, उसके काम काज में किसी को इख्तियार नहीं। आगे अल्लाह ने कहा उलाइकल लज़ीना, यही वो लोग हैं, लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा कुलूबहुम, कि अल्लाह जिनके दिलों को पाक नहीं करेगा। देखिए ये भी है, कितने भी हम सदका खैरात कर ले, अगर हम गुनाह में मुलव्विस से और मुसलसल गुनाह कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज का जिक्र किया ना, वो आयत आई के यहूदियों में जिन लोगों ने ज़िना किया तो आपने मसला लेकर अल्लाह के रसूल के पास गए, जो कलाम इलाही में तहरीफ करते हैं, जो झूठ बात सुनते हैं, झूठ बात फैलाते हैं, उनके बारे में अल्लाह ने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल को अल्लाह पाक नहीं करेगा, नहीं करने का इरादा करता, नहीं चाहता अल्लाह नहीं चाहता कि उनके दिलों को पाक करे। लहुम फी दुनिया खिज़्युन, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई है, उनकी जिंदगी रुसवा कुन जिंदगी होगी। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम,
اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں تو رسوائی ہے ہی، آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ہمیں اللہ نے رسوا کر دیا تو ہمیں سزا بھگت لیا، اب آخرت میں بچ جائے گی۔ نہیں، اللہ نے دونوں کے بارے میں بیان کیا، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے لیے رسوائی ہے اور ذلت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 پھر انہی کے بارے میں اللہ نے بیان کیا، سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹی بات کو سننے والے ہیں، وَأَقَّلُونَ لِلسُّحْتِ، اور حرام کھانے والے ہیں۔ فَإِنْ جَاءُوكَ، اگر آپ ان کے پاس جائیں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان عدل کے حساب سے فیصلہ کرے، اور عارض عنہم، یا اپنے آپ کو اس سے دستبردار کر لے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ سنتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے پوچھنے کے لیے تو آپ کو اختیار ہے، آپشنل ہے، یا تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ، یا آپ ان کو کہہ دیجیے بھائی ہم آپ کا فیصلہ نہیں کریں گے، پہلے آپ تو حرام کھاتے ہیں، آپ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ یہ بھی اللہ نے کہا، ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچ رہے ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں تو یہ میرے خلاف کوئی سازش کریں گے، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے کہا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں کہ جائیے آپ کا مسئلہ ہے، ہم نہیں اس میں پڑیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، کچھ بھی آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بھی اللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ گھبرائیے مت۔ پھر اللہ نے کہا وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ چاہتے ہیں چلو فیصلہ کر دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چلو فیصلہ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو فیصلہ کریے عدل کے ساتھ۔ دیکھیں غیر مسلموں کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اگر فریادی آپ کے سامنے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ جب بھی فیصلہ کریں تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ جب بھی ان کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے، معاملات اگر ہمارے گھر کے ہوتے ہیں تو ہم ساری سورس ساری کوشش لگا دیتے ہیں کسی طریقے سے اپنے لوگوں کو بچانے کا۔ معاملہ غیروں کا آتا ہے تو ہم اتنے حساب سے، کتاب سے، اتنے طریقے سے کوئی کسی کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بھائی آپ کا معاملہ سمجھیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ فریادی آپ کے سامنے مسلمان کی شکل میں غیر مسلم، آپ کو ان کے ساتھ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ کو عدل کے ساتھ، کس کہتے ہیں بڑی کاف سے، کہ آپ کو عدل کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ عدل جو ہے کسی کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ آج اگر غیر مسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی وجہ سے دیکھتے ہیں، اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاملات میں یہ نہیں دیکھا کہ میرے صحابہ ہیں تو یہ بچ جائیں گے، یہ میرے صحابہ ہیں تو یہ بچ جائیں گے۔ اگر صحابہ غلطی کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی سرزنش کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تک کہ آپ نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اپنے بیٹی کے بارے میں کہہ دیا آپ نے کہ چوری اگر فاطمہ بنت محمد کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اگر فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ دیکھیں ہم لوگ اپنے معاشرے میں اگر ذلیل ہو رہے ہیں اور ہم لوگ کا وزن یا ہم لوگوں کا معاملہ اگر کمزور ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اب اچھا، فطرے کو ایک پرسکون ماحول کے لیے ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ اگر ہمارا ماحول پرسکون رہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آس پاس کے لوگ صحیح ہوں، مزاج صحیح ہو، ایک دوسرے کو لے کر چلے، ایک دوسرے سے مل کر چلے۔ لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ شرک سے بھی ماحول کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ عدل انصاف اگر نہ ہو، نا انصافی ہو، تو بھی معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، دو چار لوگ آئے اس کو مار کے چلے گئے، ایک آدمی اس کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا کہ آپ کسی نے آواز نہیں اٹھائے، کسی نے اس کو انصاف نہیں دلایا، تو اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر
कैसे इंसाफ लाएगा। आप सोचिए कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सरजमीन पर इंसाफ लाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी कहा इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, के बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। आगे अल्लाह ने कहा आयत नंबर 43 के अंदर व कैफा युहक्किमूनका व इंदहु तौरातु फीहा हुक्मुल्लाह सुम्मा यतवल्लौना मिन बादी ज़ालिका। और अब कैसे उनके दरमियान फैसला करेंगे जबकि उनके पास तौरात तो मौजूद है, फीहा हुक्मुल्लाह, जिसमें अल्लाह का हुक्म है, जिसमें अल्लाह का हुक्म है, सुम्मा यतवल्लौना मिन बादी ज़ालिका, अगर कोई इसके बाद भी पलट जाए फिर जाए, वमा उलाइका बिल मुमिनीन, तो वो ईमान वाला तो नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं कब की बात हो रही है? जब तौरात उतरा उस वक्त की बात हो रही है। उस वक्त तौरात मान लीजिए एक कुरान की शक्ल में था। उस वक्त तौरात क्या था? एक कुरानी था, आसमानी किताब था। अल्लाह कह रहे कैसे आप फैसला करेंगे जबकि तौरात तो मौजूद है उनके दरमियान। मतलब ये है कि हम अगर किसी पंचायत में बैठे, किसी ऐसी मीटिंग में जहां कुछ मामला जमीन का मामला हो, तलाक का मामला हो, कोई भी झगड़ा लड़ाई का मामला हो, फैसला कैसे करना है? हमको कुरान से करना है। क्या अल्लाह का कलाम काफी नहीं है? फैसला हमें कुरान से करना है। अल्लाह ने यहाँ पे इस्तिफहामिया जिसको कहते हैं उर्दू में, सवालिया निशान जिसको कहते हैं, सवालिया तौर पर इस्तिफहामिया अंदाज में कैसे आप फैसला करेंगे? मान लीजिए कि आपको एक पंचायत में बैठाया गया, आपसे कहा गया कि आपको फैसला करना था, हमको आपसे कहेंगे आप कैसे फैसला करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? क्या जवाब होगा आपका? आप ये नहीं कहेंगे कि दोनों पक्ष का बात सुनेंगे, बात सुनने के बाद गौर करेंगे, जिसकी गलती होगी उसकी सरजनिश करेंगे और जो सही होगा उसके हक में फैसला करेंगे। इतना ना बोल कर आप ये कह दें कि अल्लाह के कलाम को फैसला करेंगे। बात खत्म। एक रोब, एक दबदबा, एक वजन और एक ताकत, एक जोर पैदा होगी इस जुमले के अंदर। आप समझ रही? ये सब मत कहिए, हम फैसला करने आए अल्लाह के कलाम के मुताबिक फैसला करेंगे। बस समझ रही? तब क्या होगा? तब एक जोर पैदा होगा। क्या थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसको पॉज कीजिए डॉक्यूमेंट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप कैसे फैसला करेंगे जबकि उनके पास तौरात में मौजूद है, फीहा हुक्मुल्लाह, उसमें अल्लाह का हुक्म भी मौजूद है। ये गर्चे उन लोगों के बारे में है लेकिन इसका हुक्म आम है। ये चीजें हम लोगों के ऊपर भी है। आप देखिए कि ये प्रैक्टिकल बातें है कि हम लोग के मुआशरे के अंदर अब फैसला कुरान और हदीस से नहीं होता है। मुझे याद है शायद इसी दर्स के अंदर बहुत पहले मैंने एक मतलब क्या बताया था कि एक तलाक का मसला था और बहुत सेंसिटिव मैटर था, बहुत सीरियस मैटर था। मतलब कि लड़की लड़का रहना चाहते थे लेकिन एक बड़ों का फैसला हो चुका था कि लोगों को जुदा करना है, अलग करना है। और उसमें ये भी एक कमी हम लोगों के अंदर है कि अगर दीन का सही इल्म नहीं रहेगा और अब देख लें कि अगर गवर्नमेंट के बारे में सही पता नहीं रहेगा किसी भी चीज़ के बारे में तो हम उसमें फेल हो जाते हैं और सामने वाला ऑफिसर जो भी बोलते हैं उनको मानना पड़ता है। लेकिन आज जो हकीकत जानेंगे तो पता चलेगा तो कैसे होगा। जैसे एक मैंने मिसाल दिया था कि बैंक में लंच टाइम नहीं होता है, कानून है आरबीआई का, कभी लंच टाइम नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि रिसेस का बोर्ड लगा दिया जाता है आधा घंटे का, है कि नहीं? लेकिन आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए, बैंक के अंदर कोई लंच टाइम नहीं, 4 से सुबह 10 से लेकर 4 तक नॉन स्टॉप बैंक चलेगा। आप जब बात कहेंगे तो फौरन एक स्टाफ आगे जल्दी से बैठ जाएगा ताकि सारा पब्लिक ना जान जाए। एक ही आदमी जाने ठीक है, सब ना जाने। लेकिन आप लोग जान के हैरानी होगी कि नहीं, लंच टाइम तो होता है ना? गैस सिलेंडर लेके हमारे आता है 30 रुपए लेता है, जबकि कोई भी कंपनी का ऑर्डर नहीं है, जो प्रिंट है वो दीजिए। 1 रुपया आप ओवर चार्ज नहीं दे सकते। लेकिन हम लोग को नहीं पता, हम लोग जो देख रहे हैं उसको हकीकत मान रहे हैं कि हकीकत यही है। जब आप कंप्लेन करेंगे गैस ऑफिस में कि डिलीवरी बॉय जो आया था वो 30 रुपया ज्यादा होता है, हमने जो स्लिप दिया वही उससे हम लेते हैं, वो अपने बचने के लिए बोल देगा जो हमने रिसिप्ट दिया है उसी पैसा को हम यहाँ जमा लेते हैं। आप 30 दे रहे 3,000 दे रहे, वो आपका मसला समझते हैं। ऑफिस से कोई कानून नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पैसा दीजिए। उसी तरीके से हमारे शरीयत का ही मामला है। जब तक शरीयत के बारे में नहीं जानेंगे, आजकल देखिए कि मुसलमानों ने कैसा दिन का हाल कर दिया है। आज उलमाए हक को क्यों बदनाम किया जाता है? ये लोग अगर हक बोलना शुरू कर देंगे तो मार्केट डाउन हो जाएगा। हम लोगों का जो भी आमदनी हो रही 2 रुपये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बैठे सही बात बताएंगे। सही बात मतलब क्या होगा? अब जैसे होता है कि तलाक के मसले में क्यों लोग चाहते हैं कि खुला हो, आप इसको गौर कीजिएगा, क्यों चाहते हैं कि खुला हो कि लड़की अपनी तरफ से कह दे कि हम नहीं रहेंगे। क्योंकि लड़का अगर तलाक देगा तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद हो जाएंगी, बहुत सारी जिम्मेदारियां। लेकिन अब इससे भी बढ़कर एक नया सिस्टम आया हुआ है, म्यूचुअल तलाक। दोनों एक एग्रीमेंट पे साइन कर दीजिए कि हम नहीं रहना चाहते, लड़की लिख दे
कि हम ही रहना चाहते हैं, कोई मामला ऐसा नहीं होता, कोई एक रहना नहीं चाहता। हकीकत क्या है, कोई एक है जो रखना नहीं चाहता या रहना नहीं चाहता, लेकिन पंचायत का प्रेशर और दबाव इतना होता है दोनों के ऊपर कि लड़की वाले से एक पंचायत का आदमी कहेगा कि भाई तुम थाना पुलिस, आप लोग शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, अच्छे लोग हैं, ये सब चक्कर में ना पड़े, मामला खत्म कर दीजिए। लड़की वालों पे एक प्रेशर बना कर दिया जाता है, देखो लड़का बहुत पैसा वाला है, तुम्हारा बाप बड़ा गरीब है, नहीं लड़ पाओगे आज के जमाने में, सिर्फ बातें किताबों में है, हकीकत में कुछ नहीं है, और इस तरीके से मामला खत्म। एक पंचायत में मैंने कहा था कि लड़का जो है वो क्या है, खुला ले ले, लड़की खुला ले ले, खुला ले एक मसला है, अगर लड़की खुला ले का मतलब लड़की तलाक ले, खुला ले तलाक है, जो लड़की का हक है। खुला की सूरत में लड़की एक रकम देगी लड़के को, शरीयत का सही कानून है कि हम आपको 1 लाख पे, 2 लाख पे, 3 लाख पे राजी कर रहे हैं, आप राजी हो जाइए और इसके एवज में मुझे छोड़ दीजिए। कभी आपने सुना है खुला में लड़की पैसा दे रही हो? मालूम ही नहीं हमको शरीयत की बात। सामने जो फरीक बैठे वो सब पैसा लेकर बैठे हुए, दोनों की अपनी अपनी एक फीस है कि आपको बैठ के खत्म कर देना है। ऐसे आदमी को नहीं बैठने देना है जो सच बात बताए, या अकेला हो झाड़ू कर डांट के भगा देंगे उसको। अकेला आदमी क्या कर सकता है? ये हाल हो गया मुसलमानों का। क्यों ना अल्लाह का अज़ाब है, क्यों ना मुसलमान जलील हो, क्यों ना मुसलमान रुसवा हो, क्यों ना मुसलमानों पर अल्लाह का कहर है, क्यों नहीं आए? आज यही सब मामला चल रहा है, हक नहीं बोला जा रहा किसी से, कोई बोलना भी नहीं चाहता, बस जैसे दुनिया चल रही वैसे चले, तो अल्लाह ने भी अपना हाथ हम लोगों के ऊपर से हटा दिया। अब जाइए आप समझ लीजिए, तौरात के बारे में अल्लाह कह रहा है कि कैसा फैसला करेंगे, जबकि उनके दरमियान तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म फिया हुक्मुल्लाह। अल्लाह ने जो आखिरी बात कही, सुम्मा यतवल्लौना मिन बादि ज़ालिका, अगर इसके बाद भी कोई फिर गया, मतलब मान लीजिए हम लोगों को पता है कि कुरान के हिसाब से लोगों के दरमियान फैसला करना है, फिर भी हम कुरान के हिसाब से फैसला नहीं कर रहे, तो अल्लाह ने कहा उलाइका बिल मोमिनीन वमा उलाइका बिल मोमिनीन, वो असल में मोमिन नहीं। डायरेक्ट अल्लाह ने कह दिया ऐसा आदमी मोमिन नहीं है। अगर हम फैसले, चाहे घर के फैसले चाहे बाहर के फैसले, किताब और सुन्नत से नहीं कर रहे हैं तो हम मुसलमान नहीं। अल्लाह कह रहा हम नहीं कह रहे, मोमिन ही नहीं, अल्लाह ने कह दिया ऐसा आदमी मोमिन नहीं सुनता। आगे देखिए क्या क्या कह रहा है, इन्ना अनज़लना तौराता, बेशक हमने तौरात को नाजिल किया, इसे इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान के बारे में अल्लाह ने तौरात के बारे में कहा इन्ना अनज़लना तौराता, बेशक हमने तौरात नाजिल किया, फीहा हुदन व नूर, जिसमें हिदायत और नूर है, रोशनी है ना। यहकुमु बिहन नबियुना, नबी इसी से फैसला करते थे, अल्लज़ीना अस्लमू, जो मुसलमान थे वो भी इसी से फैसला करते थे, लिल्लज़ीना हादू, यहूद भी इसी से फैसला करते थे, वर्रब्बानीन, और अल्लाह वाले भी इसी से फैसला करते थे, वल अहबार, और जो अल्लाह वाले हैं जो नेक बंदे वो भी इसी से फैसला करते, बिमस्तुफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह, इन लोगों को अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी दी थी, इसकी तौरात की। कुरान और तौरात में ही बुनियादी फर्क है कि तौरात की जिम्मेदारी अल्लाह ने इन लोगों को दी थी और कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी उन्हें खुद दी थी। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम इस कुरान के नाज़िल करने वाले, हम इसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह ने देख लिया कि जब इन लोगों को दिया गया तो क्या हल हुआ तौरात का। अल्लाह ने आगे कहा वकानु अलैहि शुहदा, और सब के सब इस पर गवाह है कि ये तौरात जो है अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने कहा फला तखशव नासा, तो तुम लोगों से न डरो, वख्शौनी, मुझसे डरो। अल्लाह क्या कह रहा है हम लोगों उस जमाने के लोगों से कि तुम लोगों से ना डरो, वख्शौनी, मुझसे डरो। बात समझ रही? ये जुमला बहुत अहम है। अहम इस एतबार से भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू दौर में, इस्लाम के शुरू दौर में, आपने जब अलल ऐलान दीन की दावत दी, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने कहा कहो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। बड़े बड़े मक्का के सरदार जिनका एक मतलब कि पावर था, एक रुतबा था, एक मकाम था, वो सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए। किस बात पर? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब होता है कोई माबूद नहीं मगर सिवाय अल्लाह के। अब वो खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, जो बारिश का खुदा था, तो फिर न जाने कैसे कैसे चीजों का खुदा बना कर रखे थे उन लोगों ने। अब अल्लाह के रसूल की हिम्मत उस वक्त हुई जिस वक्त वो लोग बड़ी अदब और एहतराम से अपने माबूदान बातिला की इबादत करते थे। वहां अल्लाह का रसूल ने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें जो मक्का के सरदारान की ताकतें थी, वो सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गई। होना भी था क्योंकि उनके माबूद के खिलाफ बोला जा रहा है, वो खिलाफ हो गए। आज ये चीज हम नहीं बोल पाते, आज ये चीज हम नहीं बोल पाते। आप यहाँ बैठेंगे ना, किसी बड़े आदमी के बारे में अच्छी से यहाँ बुराई करें, जैसे आदमी घुस जाएगा, आप ही का जिक्र, बैठिए ना, आप ही की बात हो रही थी ना, वो जो मदरसा में पैसा दिए ना, बहुत तारीफ हो रही थी आपकी, लैंग्वेज चेंज हो गया।
अब सोचिए प्रैक्टिकल बात है, हंसने वाली बात नहीं है। ताकत ही नहीं हमारे को, ईमान नहीं, अल्लाह ने वो ईमान नहीं दिया हम लोगों को भैया कि गलत को गलत बोल सके। आपने गलत किया है, आपको जो करना है कर लीजिए, आप गलत किए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए, आप यहाँ लड़ने आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, फौरन अंदाज और अल्फाज दोनों बदल जाते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं डरे। क्यों नहीं डरे? ये आयत में अल्लाह ने कहा फला तख्शउन्नासा, लोगों से मत डरो, वख्शौनी, मुझसे डरो ना। जो बंदा मुझसे डरेगा उसके लिए मैं हूं उसके साथ, जिसके साथ अल्लाह है उसको अब कौन सी ताकत है, अल्लाह से बड़ी ताकत। वख्शौनी, मुझसे डरो। फिर अल्लाह ने कहा वला तश्तरू बि आयाति समरन कलीला, और मेरी आयत को कम कीमत पर ना बेचो। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा कीमत बेच दो, इसका ये माना कभी ना समझो। मतलब अल्लाह कहना चाहता है कुरान की आयत ऐसी नहीं जिसकी कीमत लगाई जा सके। तुम जो भी कीमत पे बेच रहे हो ना वो तो बहुत कम है। दुनिया की ताकत दे दी जाए, पूरी ताकत मिलकर कुरान की आयत नहीं लिख सकते। ये अल्लाह का चैलेंज है कि जिन और इनसे मिलकर भी कुरान की एक आयत लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और तुम लोग पैसे के लिए आयत को बेच देते हो। मतलब वही उनके तस्करा किया जो यहूद में थे, जिन्होंने जिना किया और आयत को छुपा दिया कि फैसला हमारे खिलाफ अगर निकलता है तो नहीं मानेगा, और हमारे हिसाब से तो मान लेंगे हम लोग फैसले को। वमल्लम यहकुम बिमा, देखिए अल्लाह कह रहा है वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने, बिमा अनज़लल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया, वमल्लम यहकुम, अगर कोई उसके हिसाब से फैसला नहीं करेगा फउलाइका हुमुल काफिरून, तो काफिर। अब देखिए ऊपर में तो अल्लाह ने हल्का फुल्का बात कर दी तो मोमिन नहीं है। अगली आयत में को काफिर, वो काफिर हो गया। अगर कोई कुरान और हदीस के हिसाब से फैसला, कुरान में तो अल्लाह का कलाम, हदीस में तो रसूल की सीरत, रसूल का कौल, रसूल का फेल, अगर कोई इसके हिसाब से फैसला नहीं किया तो काफिर है। करते हैं हम लोग, सोचने वाली बात देखिए कहाँ भी चले गए। और ये कुरान का दर्स का फायदा हो रहा है ना, कि बातें पता चल रही क्या क्या अल्लाह ने कितना सख्त अंदाज अल्लाह ने इस्तेमाल किया। अगर हम ना तर्जुमा का प्रोग्राम करते तो पता ही नहीं चलता क्या लिखा हो, आज तक नहीं जानते। मैंने शुरू में कहा ना कि जिन चीजों को हम देखते हैं अपने आंखों से उसको हकीकत मान लेते हैं, लेकिन कभी हम उसकी गहराई में नहीं जानते। जब जाते हैं उसके अंदर पता चलता है तब हमको नया लगता है, नया नहीं, हमको नया लगता है। तो अल्लाह ने कहा कि ऐसा आदमी कि अल्लाह ने जो नाजिल किया उसके मुताबिक फैसला नहीं करेगा तो हुमुल काफिरून, उलाए का जमा कसेगा, सारे के सारे लोग काफिर है। आप अगर किसी पंचायत में बैठ के बोल देना कि आप लोग काफिर है तो गुस्सा हो, अरे आप ही मुसलमान हैं, हम काफिर हो गए। अल्लाह ने क्या शर्त बताई, देखिए यहाँ पे अल्लाह ने नहीं कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो काफिर हो जाएंगे, आप रोजा नहीं करेंगे काफिर। आप अल्लाह के कलाम के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे तो आप काफिर है। भाई अल्लाह के कलाम को जो मानेगा ना मुसलमान होगा, जो कुरान को नहीं मानेगा मुसलमान कैसे हो सकता है? अगर हमें अल्लाह ना करे किसी पे अकीदा हो जाए कुरान को हम नहीं मानेंगे तो क्या हम मुसलमान हो सकते हैं? ईमान के जो चीजें हैं 6 चीजें, उसमें से एक है अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना। अल्लाह की किताबों पर कुरान भी है, सारे आसमानी किताबों पर ईमान लाना, अबर सिर्फ कुरान पर। तौरात पर ईमान लाते हैं, क्या मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। हम इंजील पर ईमान लाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। जबूर पर ईमान लाते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। लेकिन अमल सारी चीजें मनसूख हो गई, कुरान ने कुरान नासिक करके मनसूख कर दिया। अल्लाह कह रहा है कि अगर कोई अल्लाह के नाजिल करदा कलाम के मुताबिक फैसला ना करे तो काफिर है। उसके बाद अल्लाह ने आयत 45 में अल्लाह ने कहा वह कतबना अलैहिम फीहा, हमने तौरात में लिख दिया। क्या लिख दिया? हमने उनके ऊपर यानी यहूदियों के ऊपर तौरात में लिख दिया। क्या लिखा? अन्नन नफ्स बिन नफ्स, किसास के बारे में। किसास क्या होता है समझ लीजिए। किसास इस्लाम में एक टॉपिक है, एक मसला है कि अगर कोई किसी को जान से मार दिया तो बदले में उसको भी जान से मारा जाएगा, लेकिन उसको इख्तियार नहीं है मार दीजिए, काजी वक्त के पास मामला जाएगा, वरना हर आदमी अपने में निपट लेगा, तो फिर सिस्टम और कानून कहाँ बचेगा? अगर हुकूमत है, किसी ने किसी के भाई को जान से मार दिया तो उसके घर वाले काजी वक्त के पास अदालत में जाएंगे कि फला आदमी ने मेरे भाई को मार दिया। अदालत जो है उसको गिरफ्तार करेगा और इंक्वायरी करेगी कि जो इल्जाम सही है, झूठा भी तो हो सकता है ना। इस दफा साबित हो जाता है कि हाँ भाई इसने इसको मार दिया, यह हकीकत है, या हो सकता है वो भी जुर्म कबूल कर ले कि हमें मारा है। तो अब क्या होगा कि घर वाले कहेंगे कि इसको भी जान से मारा जाएगा, नहीं भी कहेंगे तो कानून यही कहता है कि उसको भी जान से मार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दो ऑप्शन है, वो सारा ऑप्शन मकतूल के पास है, कातिल के पास नहीं है। मकतूल के पास पहला ऑप्शन ये है कि जान के बदले जान,
जान से मारा उसको मार दिया जाए। मकतूल के घर वाले कहें, जो आदमी मरा है उसके घर वाले कहें हम कुछ नहीं सुनेंगे, इसको भी मरना होगा, बात खत्म हो, आप कोई ऑप्शन नहीं बचा। दूसरा ऑप्शन है दियत। हो सकता है कातिल के घर वाले जाके समझा दिए, देखिए जो हो गया सो हो गया, हमको अफसोस है, जिसको ज्यादा जा चुका है, एक तो आदमी बचा हुआ है, आप कुछ ले लीजिए पैसा उसका। तो जो वो मुतालबा करेगा 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ तो आपको देना होगा, आपको देना होगा। वो कहे कि चलो घर वाले फैसला करें, चलो हमारा भाई तो चला गया, उसके बाद बच्ची है बीवी है, चलो 50 लाख रुपया का दे देता है, उसका जिंदगी गुजारने का सहारा हो जाएगा, चल उसकी जान भी बच जाएगी, ये भी हो जाएगा। ये मकतूल घर वाले चाहेंगे तब आप हाँ कातिल के घर वाले जाकर समझा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा चीज है माफ कर दे, ये तो बड़ा मुश्किल चीज है, उसमें भी अगर किसी ने माफ करी समझो बड़े दिल बना दिए। 3 ऑप्शन है, लेकिन पहला ऑप्शन क्या है, जान के बदले जान। अब ये चीज तौरात में भी है, अल्लाह ने क्या कहा, कतबना अलैहिम फीहा, हमने उनके ऊपर ये चीजें लिख दी, अन्ना नफ्सा बिन नफ्स, जान के बदले जान, वल आइना बिल आइन, आंख के बदले आंख, अगर किसी ने किसी का आंख फोड़ दिया तो उसके भी आंख फोड़े जाएंगे, वल अनफा बिल अनफ, नाक के बदले नाक, किसी ने किसी का नाक काट दिया उसके भी नाक काटे जाएंगे, वल उजुन बिल उजुन, और कान के बदले कान, अगर किसी ने किसी के कान काट दिए तो उसके भी बदले में कान काटे जाएंगे, वसिन्ना बिस्सिन, और दांत के बदले दांत, किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया मुक्के से मार के बदले में उसके भी दांत तोड़े जाएंगे, वल जुरूहा किसासुन, और अगर भी बहुत बड़े बड़े जो इंजरी हो, जुरू के ना, जुरू भी उर्दू का लफ्ज जर्रा बोलते हैं ना, जर्रा काट छाट करने वाला, चीर फाड़ करने वाला, वही है जुरू। वल जुरूहा किसास, अगर कोई जख्म गंभीर है, सीरियस जख्म है, तो उसको भी वैसा ही जख्म दिया जाएगा किसास में। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात के बारे में बयान किया, ये सिर्फ कुरान के अंदर नहीं है, ये तौरात के अंदर भी, लेकिन यहूदी इसको छुपा देते हैं। आप देखिए ऊपर में जिना का जो जिक्र बात में बताना भूल गया कि तौरात में लिखा है कि अगर कोई जिना करता है शादीशुदा जोड़ा तो उसको रजम किया जाएगा। आज सबसे ज्यादा जिना यहूदियों में होता है, ये बात मालूम है कि नहीं? आज जितनी बुराई आ रही है मगरबी कल्चर से हमारे यहाँ, कहां से आ रही है? उन्हीं के यहाँ से आ रही है। क्या उनको नहीं पता है? उनके तौरात में लिखा, पता है लेकिन उनके पादरी ने बताया नहीं। उनको भी मालूम है, अगर उनके पादरी बता दे कि देखो उस पर ये है तो वहीं से शुरू हो जाएगा कम होना, लेकिन उन लोगों ने बताया नहीं ताकि वो लोग भी बहुत मस्ती कर सके। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं, उलमाए हक इस चीज को बताते कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, बुराई। इन्नहु काना फाहिशतन वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फाहिशतन, जिना करीब ना जाओ क्योंकि ये बेहयाई का काम है, बुराई का काम है, इससे नस्लें गड़बड़ हो जाती है, खलत मलत हो जाती है। ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसास के बारे में बयान किया। एक लफ्ज का अल्लाह ने बेहतरीन इस्तेमाल किया। आगे अल्लाह ने कहा फमन तसद्दक़ बिही फहुव कफ़ारतुन लहू, अगर कोई माफ कर दे तो ये उसके लिए कफारा हो जाएगा। माफी के लिए बहुत सा लफ्ज अरबी के अंदर आता है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन, अल्लाह बेशक तू माफ करने वाला है। अफू करा जा सकता है, लेकिन जानते हैं लफ्ज क्या है? तसद्दक़, सदका के माने। सदका मतलब कि अगर आप किसी को माफ कर दो ये सदका है। इससे सदका की अहमियत का अंदाजा होता है, सदका की अहमियत का अंदाजा होता है कि अल्लाह ने माफी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे। अगर लफ्जी तर्जुमा करेंगे फमन तसद्दक़ा, और जो कोई सदका करे, तो ये अजीब बात होगी, यहाँ किसास की बात है, सदका कहां से आ गया? यहाँ पे माना है सदका का माफ कर दे। अगर कोई माफ कर दे, कोई मकतूल के घर वाले माफ कर दे, चलिए भाई हमारे घर का जो अफराद था जाने वाला चला गया, उसमें क्या आपकी जान हम ले, हमको तकलीफ हो रही है, हम अपने बच्चों के रो रहे हैं, नहीं चाहते कि आपकी माँ भी आपके लिए लेकर रो, चलिए आपको माफ कर दी, अल्लाह के लिए माफ कर दी। अल्लाह ने उस माफी को सदका से ताबीर किया। आप अंदाजा लगाइए कि शरीयत में सदका की क्या है। ये कभी नहीं रुकना चाहिए, सदका होना कभी नहीं रुकना चाहिए, दिन ब दिन रोज बरोज बढ़ते रहने चाहिए। इसको हम रोक दिए हैं, इसीलिए गरीबी मुफलिसी फकीरी हमारे कौम के अंदर है। हम लोग अपने हाथ को खींच लेते हैं, अल्लाह से लेते तो ऐसे ऐसे लेते हैं, ऐसे बटोर लेते हैं, अल्लाह के जब देते तो ऐसे थे, तो खींच रहे फिर नहीं करेंगे। अभी स्कूल का फीस बाकी है बच्चा का, ड्राइंग का कॉपी खरीदना है, अभी वो स्पोर्ट्स फीस भी देना है, पूरा टेंशन लेते हैं। और लेते वक्त नहीं बोलते कि अल्लाह हो गया बस, महीने में 20,000 खर्चा 50 क्यों दे रहा है? बोलना चाहिए वहां पर भी कि अल्लाह 30,000 अगला महीने। ये हाल हो गया सदका के बारे में कि हम लोगों ने रोक दिया। आज देखिए कौम कहां चला गया। कौम में गरीबी फकीरी मिस्किन ज्यादा पाए जाते हैं। अल्लाह ने कहा कफ़ारतुन लहा, ये क्या है? कफारा है। और सूरह मुनाफिकून जब पढ़ेंगे ना तो उसमें है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आदमी को बुलाएगा जहन्नम से निकाल कर, वो कहेगा कि अल्लाह मुझे दुनिया में जाने दो। वो पूछेगा अल्लाह क्या करोगे दुनिया में जाकर? तो कहेगा मैं सदका करूंगा। वो ये नहीं कहेगा नमाज पढ़ूंगा रोजा रखूंगा
या मक्का में काबा को पकड़ के वहीं पे सट जाऊंगा, हट भी नहीं करूंगा, वो ये सब नहीं कहेगा। वो कहेगा मैं सदका असदक, मैं सदका करूंगा। जहन्नम से निकलने के लिए सदका करेगा, वो सदका करेगा। वो यहाँ भी अल्लाह का कौन था सदका। आगे अल्लाह ने कहा मन लम यहकुम बिमा अंजलल्लाह, और अगर कोई अल्लाह की नाजिल करदा किताब या आयत के मुताबिक फैसला ना करे फौलाए का जालिम, तो जालिम। अब देखिए एक जगह अल्लाह ने कहा कि मोमिन ही नहीं है अगर कोई अल्लाह के हिसाब से किताब के हिसाब से फैसला ना करे, एक जगह अल्लाह ने कहा अगर कोई अल्लाह की किताब के हिसाब से फैसला नहीं करे वो काफिर है। अब यहाँ अल्लाह ने जालिम कह दिया। सोचिए कितनी अहमियत है कि हमारे फैसले अल्लाह के किताब और रसूल की फरमान के मुताबिक, हमारे फैसले ऐसे हो, ऐसी होता है, इसी पर खैर है, इसी में बरकत है, इसी में आफियत है, इसी में राहत है। और जब जब फैसले अपने अकल से होंगे तो याद रखें कि उसके अंदर खैर बाकी नहीं रहेगा, फितना फसाद बिगाड़ सारी चीजें जो है उसके अंदर जमा हो जाएंगी। आज का दर्स यहीं पर मुकम्मल हुआ। सूरह माइदा आयत नंबर 45। अगर कोई सवाल हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमसे कोई किसी से कर्ज अगर लेता है, वो बहुत दफा देखा जाता है कि वो रिटर्न नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या माफ कर देने से कुछ अजर वगैरह? देखिए सवाल ये कि कोई कर्ज लिया है, किसी से कोई भी ले सकता है कर्ज, किसी का जरूरत पेश आ सकती है, तो कर्ज दे नहीं रहा है तो क्या करें, माफ कर दे कि क्या करें? तो इसमें जो शरीयत का कानून है, पहले कर्ज के बारे में समझ लीजिए। कर्ज जो लेन देन लोग करते हैं उसमें कुरान ही का हुक्म है कि शायद सूरह आले इमरान में कि जब आप किसी को कर्ज दे तो 2 गवाह मुकर्रर कर ले और एक लिखने वाला। अगर ये आज कर्ज लेने वाला कह रहा है कि भाई आप हमको दलील करना चाहते हैं, हम बहुत खुफिया तौर पर आपके पास आए हैं अपनी मजबूरी लेकर, आप कह रहे हैं कि 2 लिखने वाला आएगा, एक गवाह आएगा, 2 गवाह आएगा, एक लिखने वाला आएगा, तो हम लोगों के लिए 3 लोग और जान जाएंगे। अगर कोई ऐसा इमोशनल बयान दे रहा है तो आप कहें कि मेरा कानून नहीं, अल्लाह का कानून है, हम आपको देंगे, किस तारीख को देंगे, किस जगह पे देंगे, 2 गवाह रहेंगे, एक कातिब लिखने वाला होगा, और आप कब लौटाने का वादा कर रहे हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड रहेगा। इसके फवायद हैं। इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज जितने कर्ज लेन देन हो रहे हैं 2 आदमी के दरमियान, लेने वाला दे नहीं रहा है और जिसने दिया वो साबित भी नहीं कर पा रहा है। अगर वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस क्या कर सकती है? क्या 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 आपके पास सबूत है कि आपने तो कर्ज दिया है? और जो कर्ज लिया वो कह भी सकता है कि भाई आपने हमको दिया, सबूत है आपके पास, तो क्या कहेंगे? नहीं कह सकते। तो कर्ज के बारे में अल्लाह ने कहा कि जब भी कर्ज लेन देन करे तो लिखा पढ़ी करे। ये दोनों की इज्जत का मामला है, ताकि कोई किसी पर झूठा इल्जाम ना लगा दे, कोई किसी को हक ना मार दे, दोनों चीजें हैं। अब आते हैं सवाल के ऊपर। अब एक सवाल ये है कि कर्ज लेने वाला हकीकत में अभी तक वो मकरूज है, उसके पास वसाइल पैदा नहीं हुए, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो जिससे कर्ज लिया उसके पास चल कर जाए, जैसे चल कर गया था कर्ज लेने के लिए, उसी चल कर जाए और कह देखिए कि आपका टाइम पूरा हो रहा है 1-2 दिन के बाद, लेकिन हमें उस हालत में नहीं को दे पाऊँ, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ बड़ी मोहब्बत से, खुलूस से, कि मुझे कुछ और वक्त दीजिए। क्यों नहीं आता? मेरा आदमी पिघल जाएगा आपके अंदाज से। कर्ज देने वाले पता लगा है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, आखिर हकीकत में इसके साथ परेशानी है या ये बहानेबाजी कर रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी है। आप पता लगाए, हकीकत पता चल जाए तो आप उसको मोहलत दें। हकीकत इसके बरअक्स हो कि उसका घर में सब मौज मस्ती हो रहा है, एक से एक सामान खरीद के रखा, पैसा देने में ये कतरा रहा है, तो हदीस के अंदर है कि उसको जलील कर दो मजलिस में। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसे शख्स को भीड़ में पकड़ के जलील कर दो। तो पैसा कब दोगे मेरे बताओ? इतना सख्त अल्फाज अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसे शख्स को जलील कर दो। होता क्या है, हम कर्ज ले लेते हैं, चल कर जाते हैं, और देने का टाइम आता है तो फोन करते हैं भाई ऐसा है तो टाइम चाहिए, समझने की बात कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? वो थोड़ा मारेगा। अब आखिरी चीज है कि अल्लाह ताला ने कहा अगर माफ कर दो तो क्या कहें? इसका मतलब बहुत अज्र है। तो माफी भी ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए कि जो हकीकत में मजबूर है, जो दे नहीं पा रहे, उनको माफ करना है। जो खा पी के टाइट, उसको कैसे माफ करेंगे? उसको कैसे आप माफ करेंगे? आप माफ करने में तो बढ़ावा दे रहे उसको। वो आज आपसे लिए, कल किसी और से लेगा, फिर परसों किसी और से लेगा और माफी के चक्कर में रहेगा। नहीं, माफ उन लोगों को करना है जो हकीकत में देने के लायक नहीं, काबिल नहीं, तो उनसे चल कर आप बोले कि भाई सुनिए, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपको नहीं लौटाने देंगे।
یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے, اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا, بڑھا چڑھا کر دے گا. ہم سب آپ نے بتایا تھا کہ کھلا لینے پہ عورت بھی مانگ لیتی ہے, تو اس کا مطالبہ عورت طے کرے گی یا مرد طے کرے گا اس کو کہ ہم کو اتنا لینا ہے, یا پھر عورت طے کرے گی ہمیں اتنا دینا ہے؟ دیکھیے سوال یہ کہ کھلا پر کیا ہوتا ہے, شریعت کا جو قانون ہے کہ عورت کچھ پیسے کا راضی ہے. قرآن میں یہ بھی ہے کہ تم کم سے کم چیزوں پر راضی ہو جاؤ, کم سے کم چیز پر راضی ہو جاؤ. کیونکہ غصہ رہتا ہے لڑکے کے اندر کہ چھوڑ کے ہم کو جا رہے ہیں, لیکن وہ حدیث بھی تو ہے نا کہ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر اپنے شوہر سے کھلا لے گی تو جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی. تو چاہے دنیا میں کتنی اچھی شوہر اس کو مل جائے, اس کا شوہر حاجی مل جائے, اس سے کچھ ہونے والا نہیں, کچھ نہیں ہونے والا. آپ نے بلا وجہ اپنے شوہر سے کھلا لیا ہے, آپ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے جب تک وہ شوہر آپ کو معاف نہ کرتے اپنی زندگی میں. چلو کوئی بات نہیں, اس وقت غصہ تھے, اب ہم اس کو دل سے معاف کر دیتے ہیں. یہ دل کا حال جو اللہ جانتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ انسان پگھل جاتا ہے. چلو غصہ تھا, اس کو جہاں جانا تھا کیا اس کو باندھ کے رکھتے, یا اللہ میرے طرف سے اس کے لیے کوئی شکایت نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. تو مرد کو چاہیے کم سے کم چیز پر راضی ہو جائے, اچھا وہ جتنا مطالبہ کرے اس کا راضی ہو جائے, یا پھر کم سے کم چیز پر. بھائی اب تم ان کو کچھ مت دو, جاؤ بولا لینا چاہتے ہیں. والدین بھی سمجھ نہیں. درس کے اختتام پہ اعلان کیا جاتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرما لے. اللہ ہمیں حق بات کہنے, حق بات سننے اور اس پر تو عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو آسانی بدل دے. اللہ امت محمدیہ پر تو رحم و کرم کا معاملہ رہا, کہیں بھی مسلمان دنیا کسی حصے پریشان, اللہ کو ان کی گہری مدد فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس ختم ہو گیا, آپ لوگ آف لائن.